السلام علیکم ناظرین، چلیے آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے میرے اس چینل پہ شاداب اسکول آف انگلش اینڈ جی کے جی ایس میں، جس میں آج ہم لوگ اردو زبان کی پہلی کلاس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ٹیٹ میں، سی ٹیٹ میں یا پھر میٹرک میں یا پھر 10+2 لیول میں آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اردو قواعد۔ کیا شروع کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ اردو قواعد۔ ٹھیک ہے، اردو قواعد کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قواعد کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول یا ضابطہ۔ قاعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول یا ضابطہ، یعنی طور طریقے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قواعد جو ہے وہ قاعدے کی جمع ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول یا ضابطہ۔ تو اردو قواعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو قواعد یعنی قواعد کو اگر کہا جائے تو قواعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کو بولنے یا لکھنے کے لیے جن اصول و ضوابط کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر قواعد کی تعریف آپ کہیں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ قواعد جو ہوتا ہے کسی بھی زبان کو لکھنے یا بولنے، کسی بھی زبان کو لکھنے یا بولنے کے لیے جن اصول و ضوابط جن اصول و ضوابط کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ بھائی کسی بھی زبان کو لکھنے یا بولنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ طور طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو قواعد سمجھ گئے کہ قواعد کیا چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے قواعد کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اردو قواعد کی اگر ہم قسموں کی بات کریں، سمجھیے گا، اردو قواعد کی اگر ہم قسموں کی بات کریں تو اردو قواعد کی جو ہے نا 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ چلیے میں اسے مٹا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ اردو قواعد کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ جلدی سے نہ لکھ پائیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ چلیے، اردو قواعد کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، ہے نا، یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ علم ہجہ، علم صرف، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم نحو، علم بلاغت، علم بلاغت، اور 5واں ہوتا ہے علم عروض۔ یہ اردو قواعد کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ اب دیکھیے علم حجہ کیا ہوتا ہے؟ علم حجہ وہ علم ہوتا ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جانکاری، یا علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگاہی، یعنی جس میں ہمیں کسی چیز کے بارے میں جانکاری یا آگاہی حاصل ہو اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ علم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو علم حجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم حجہ میں جو بحث کی جاتی ہے وہ کس سے؟ حروف تہجی سے، ہے نا، حروف تہجی سے بحث ہوتی ہے علم حجہ میں۔ کس سے بحث ہوتی ہے بھائی؟ حروف تہجی سے بحث ہوتی ہے۔ اور یہ جو حروف تہجی ہے نا، سمجھیے گا، حروف تہجی جیسے آپ کہہ لیں الف، با، ہے نا، جیسے الف ہے نا، آپ بے لکھتے ہیں، آپ پے لکھتے ہیں، آپ تے لکھتے ہیں، آپ سے لکھتے ہیں، جیم ہے نا، ہا ہے، چا ہے، یہ سب اس طرح کی جو ہے نا حروف ہے اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ حروف تہجی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو علم حجہ میں دراصل ہم جو ہے حروف تہجی سے بحث کرتے ہیں، جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بھائی حروف تہجی کے اس کے جو ایک طرح سے حرکات و سکنات ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے۔ اسی کے
हरकत व सकनात के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यानी इल्म हिज्जा में हरूफ तहज्जी से बहस होती है, जिसमें है ना जैसे अलिफ बा पा ता सा है ना, उसके हरकत व सकनात क्या होंगे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, समझिएगा। और ये जो हर्फ होता है ना, हर्फ, ये जो हरूफ जिसको मैंने लिखा है हर्फ, ये हर्फ जो है ये उर्दू ज़बान की सबसे छोटी इकाई है, सबसे बुनियादी इकाई। ये क्या है, बुनियादी इकाई। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू ज़बान की सबसे बुनियादी इकाई कौन है, तो हर्फ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और हर्फ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, लफ्ज़ हो जाता है भाई। तो हरूफ तहज्जी में हम जो है ना अलिफ बा पा ता सा इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें है ना उस हरूफ के हरकत व सकनात के बारे में पता चलता है। और इसका जो ताल्लुक़ है ना वो किससे ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ इमला से, इसका ताल्लुक़ किससे है, इमला से। यानी जो कुछ भी आप लिखते हैं उसमें आप क्या करेंगे, हर्फ का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हर्फ को मिलाने के बाद वो क्या बनेगा, लफ्ज़ बनेगा, जो कि बहस किसका है, सर्फ का बहस है, समझिएगा। तो इसका ताल्लुक़ जो है वो किससे है, इमला से ताल्लुक़ है। अगर हम इल्म सर्फ की बात करें तो इल्म सर्फ में जो बहस की जाती है वो किससे बहस की जाती है, लफ्ज़ों से बहस की जाती है, लफ्ज़ों से बहस। किससे बहस होती है, लफ्ज़ों से बहस होती है, लफ्ज़ों से बहस होती है, किसमें, इल्म सर्फ में। यानी जब आप कई हर्फ को मिलाते हैं आपस में तो वो क्या बन जाता है, लफ्ज़ बन जाता है। तो लफ्ज़ में दरअसल हम लफ्ज़ के बनावट से बहस करते हैं, जहाँ पर ये जानते हैं कि भाई कोई लफ्ज़ जो है वो किस तरह से बना है। जैसे आप इल्म सर्फ में ये जानते हैं कि नए नए लफ्ज़ किस तरह से बनाए जाएंगे। जैसे बाग से अगर हम बागबान कहें, ठीक है, इसी तरह से है ना, जैसे आप जो है और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बाग से बागबान कहा, है ना, इसी तरह से गुलाब से आप गुलाबी कह दें, है ना। तो ये क्या है, किसका बहस है, इल्म सर्फ का बहस है। अगर हम इल्म नहव की बात करें तो इल्म नहव में जो बहस होती है वो किससे, अज्जाए कलाम, अज्जाए कलाम से बहस होती है। अज्जाए कलाम से बहस का क्या मतलब हुआ, अज्जाए कलाम से बहस का मतलब ये हुआ कि भाई जब आप कोई जुमला बोलते हैं तो जुमलों की एक तरतीब होती है। उसमें क्या होता है, फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है और फ़ेल होता है, बात समझिएगा। तो ये जो है ये किसका बहस है, इल्म नहव का बहस है। नहव का मतलब ये होता है रास्ता, यानी जिसमें हमें जुमले में लफ्ज़ों की तरतीब के बारे में बताया जाता है, उसका ताल्लुक़ किससे है, इल्म नहव से है। तो इल्म हिज्जा हरूफ और हर्फ के जोड़ने से क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ों को जोड़ने से क्या बनता है, कलाम बनता है। तो सबसे बुनियादी इकाई जो है वो हर्फ है। उसके बाद दूसरी बुनियादी इकाई क्या है उर्दू ज़बान की, वो क्या है, सर्फ है, यानी लफ्ज़, है ना। और तीसरा क्या है कि उस लफ्ज़ों को जब आप मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है, समझिएगा। अगर हम इल्म बलागत की बात करें, ठीक, इल्म बलागत की बात करें, बलागत का मतलब क्या होता है, बलागत का मतलब होता है एक तरह से जिसमें हम जुमलों की, है ना, जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियां बयान करते हैं। क्या करते हैं, जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियां बयान करते हैं। लफ्ज़ी और मानवी खूबियां बयान करने का क्या मतलब, यानी इल्म बलागत में दरअसल ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सुनने वाले को वो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा अच्छा लगे, है ना, माने उसके लिए वो दिलकश बन जाए, दिलकशी पैदा कर दे, ठीक है। तो ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो क्या कहलाता है, बलागत कहलाता है, ठीक है। अगर हम इल्म उरूज़ की बात करें तो इल्म उरूज़ का मतलब क्या होता है, इल्म उरूज़ का मतलब होता है यानी वो इल्म, वो जानकारी जिससे हमें अशआर, यानी शेर की जमा अशआर होती है, अशआर को समझने या अशआर को लिखने या उस अशआर के लिखने में जो मौजू या गैर मौजू लफ्ज़ है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी अगर कहा जाए इल्म उरूज़ का मतलब तो अशआर समझने या लिखने का हमें इल्म होता है, हमें इल्म होता है।
उसे हम किस नाम से जानते हैं? इल्म उरूज के नाम से जानते हैं। समझिएगा, तो उर्दू ज़बान की ये 5 किस्में हैं। इल्म हिज्जा है, इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है, इल्म बलागत है, इल्म उरूज है। मैं फिर से इसको ज़रा सा आपको रिवाइज़ करा दूँ। इल्म हिज्जा का मतलब जिसमें हम हरूफ के से ताल्लुक़ से संबंधित या उससे ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? बहस करते हैं, जो कि हरूफ तहज्जी होता है, अलिफ बा पा ता टा सा जो भी है, ठीक है ना। और उसमें हम लोग हरूफ के हरकत और सकनात की बात करते हैं, और ये हर्फ जो होता है ये सबसे बुनियादी इकाई होती है, ठीक है। और उसी हर्फ को जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? लफ्ज़ बन जाता है, जो कि किसका बहस है? इल्म सर्फ का बहस है, ठीक है। और जब हम लफ्ज़ बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमें जुमलों को तरतीब देना होता है, और जुमले में क्या होता है? फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल वगैरह होता है, या फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल। उर्दू में जो लिखने का तरीका होता है जुमला, सबसे पहले आप फ़ाइल लिखते हैं, उसके बाद मफ़ूल लिखते हैं, फिर फ़ेल लिखते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो फिर वो जो होता है बहस किसका होता है? इल्म नहव का बहस होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अज्ज़ाए कलाम के नाम से जानते हैं। और इल्म बलागत में जो है दरअसल हम जुमले के है ना या लफ्ज़ों के मानवी या फिर जो है आप कह लें है ना लफ्ज़ी खूबियाँ बयान करते हैं, यानी ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ़साहत व बलागत से क्या हो? भरपूर हो, जो कि सुनने वालों के लिए बड़ा अच्छा लगे, सुनने वालों के लिए दिलकशी पैदा करते। ऐसे इल्म को हम किस नाम से जानते हैं? इल्म बलागत के नाम से जानते हैं। अगर हम इल्म उरूज की बात करें तो इल्म उरूज में जो है हमें दरअसल अशआर के बोलने या अशआर के कहने या लिखने या पढ़ने या समझने का हमें इल्म होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इल्म उरूज के नाम से जानते हैं। तो हम लोग है ना आगे की क्लास जो जारी रखेंगे वो किसके ताल्लुक़ से? इल्म हिज्जा के ताल्लुक़ से, जहाँ पर हम लोग है ना हर्फ़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप हर्फ़ में देखेंगे कि हर्फ़ मौजू भी होता है, हर्फ़ मुहमल भी होता है। हम जो है ना एराब के बारे में बात करेंगे, ज़म्मा के बारे में बात करेंगे, कसरा के बारे में बात करेंगे, ज़बर के बारे में बात करेंगे, ज़ेर के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आगे की जो क्लास हमारी होगी वो किससे ताल्लुक़ रखने वाली क्लास होगी? इल्म हिज्जा से ताल्लुक़ रखने वाली क्लास होगी। तो आज हमने ये पहला शुरू किया है क्लास है ना उर्दू क़वाइद से रिलेटेड, उर्दू क़वाइद से मुतल्लिक़, जिसमें हम लोगों ने उर्दू क़वाइद के अक़साम को जाना कि उसे हम 5 हिस्सों में पढ़ते हैं: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज। अगली क्लास में हम लोग इल्म हिज्जा से अपनी बात को आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी, मैंने जो आपको समझाया कि आपको समझ में आया। और अगर आप में से देखने वाले को, मेरे नाज़रीन को अगर कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है ना। अगले सेशन में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और अपनी बात को हम कहाँ से है ना जारी करेंगे? इल्म हिज्जा से जारी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।